Good evening, everyone. I am really happy to have you all over here, and little bit of introduction about OIAH, Orbit Institute of Applied Homeopathy. Few of you have attended our previous sessions and previous courses, which we have launched on skin and PCOD, and few more webinars which we had done. So many of you were there and few of you are new to our institute. So welcome everyone and thank you for joining the session. As promised that OIAH will not leave a long gap in starting any sessions. So within a span of 2 weeks when we dropped out of and we stopped our course of skin, we are here with another session, which is just a day session today, that is on gout. Now, I would like to tell you all that why we have chosen this topic of gout today. The purpose of choosing gout was because nowadays, earlier it was said that gout is a disease which happens only in the rich people. But now it's nothing like that. Every common person, you can say almost like 10% of the population all over the world is now suffering from, or if I have the wrong data, more than that also, they are suffering from gout. Gout, which is nothing but it's a type of arthritis which happens because of the accumulation of uric acid. So today we are discussing because it's a very commonly found disorder and there are many people suffering from it and many of them go asymptomatic. And then since we have been in Orbit Clinic getting many diseases, many patients based on this, so we thought of discussing our experience with you all. That was the major purpose we thought of because we had few cases which have been successfully treated by Orbit Clinic, and it's all the doctors who have been working day and night in a very progressive manner. So it will be like a kind of session which will be involving me and Dr. Deepak. We both will be discussing, it's not about only telling about gout and what is the basic pathology physiology of gout. We are here to welcome all the questions which we would like to answer, and what are the doubts which you have related to gout, what are the experiences you all have related to the cases of gout, and if there are any cases in which you are not able to proceed forward, you have any kind of queries, we are here to solve that. So I would like to start the session only with some kind of questions if anyone is having. So I'll give you a minute. Please type your questions in the chat box so that we can address those questions. And then later on we can. Are you all able to hear me? Because Swati said that my voice is not coming. I think it's clear from our side. और डॉक्टर स्वाति आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है. Are you able to hear now, Dr. Swati? Okay, fine. So I would request all of you to, like, if there are any questions coming in your mind or you have faced some kind of hindrance, some kind of problems while solving the cases of the gout, or if you have any gout cases which you have successfully treated, please write it in the chat box so that we can start with the questionnaire session, then go back with the other things which we have to tell. I'm giving a minute. 9:10, we will be starting with addressing those questions. And if there are not much of the questions, we'll start from our end, what we have decided to discuss with you all. And please, I'm not saying it's a session, it is a discussion open session so that we can address all the questions of your related to the gout. Yes, Dr. Deepak, what do you say? Have I started in the right way, asking questions from everyone? आप म्यूट पे हो डॉक्टर दीपक.
सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। देखिए, हम सब लोग आपके लिए जो वेबिनार या जो कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं, वो हम ये सोच करके करके आ रहे हैं कि आप डॉक्टर्स हैं और आपको इस जनरल प्रैक्टिस में कोई ना कोई इसमें हर्टिंग होती होगी। हम आपको सिर्फ बुक्स पढ़ाएं या आपको ऐसे लेक्चर्स दें जो सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल हो। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको गाउट के बारे में आज जो भी क्वेश्चंस हैं, आप बीच में भी पूछते पूछते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि हम अपने सेशंस को उसी हिसाब से आपको बताते चलेंगे कि आपको गाउट में एक्चुअली क्या करना है। मुझे लगता है कि डॉक्टर शिल्पी, आपको जो भी सेशन शुरू करना है वो शुरू कर लीजिए, क्योंकि जो चलन है वो यही है कि सारे स्पीकर जो है क्वेश्चंस बाद में पूछते हैं, तो सब लोगों की आदत होती है कि बाद में पूछेंगे। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बीच में कभी भी। तो जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर करते चले जाएंगे। तो शुरू करिए डॉक्टर शिल्पी, मुझे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन अबाउट गाउट, कि व्हाट इज गाउट, गाउट है क्या। सो गाउट इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। ये एक आर्थराइटिस है जिसमें कि हमको मेनली पेन होता है, लाइक वी विल बी हैविंग द पेन एंड वी विल बी, especially there are some areas, some specific regions where the pain is more. Like some people experience pain especially in the right toe, in the big toe, some in the knees, some in other joints like in the fingers, and there is a movement restriction is there. So before going ahead, I'll give the mic to Dr. Deepak. Let him say a few words about gout, what he has experienced and what he has to say. Then we will go ahead with the few topics related to the gout. Yes, Dr. Deepak. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। देखिए, जहां तक गाउट के बारे में सवाल आता है, तो गाउट को सोचते ही एक दर्द हमारे मन में आ जाता है। और जो ये दर्द आता है ये बहुत ही सीवियर होता है। ये सभी लोगों को मालूम है कि ये एक आर्थराइटिस और बोन की एक डिजीज है, जिसमें जनरली एक इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन जो गाउट है वो सिर्फ वन डे प्रोसेस नहीं है। मतलब जितना भी हम लोग आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि गाउट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की एक दिक्कत है, और उसके यूरिक एसिड उसमें इंक्रीज हो जाता है, और प्यूरिन प्रोटीन जो है उसके जो एसिमिलेशन है उसमें कोई दिक्कत आती है। तो मेरे पास जनरली जब भी कोई केसेस आते हैं, खासकर एक्यूट को लेकर के, तो वो ज्यादातर केसेस लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब हम रात को बिल्कुल ठीक सोए थे, और उसके बाद हम जैसे ही उठे हमारे जो नी में पेन हुआ, या एंकल में पेन हुआ, या किसी मेटाकार्पल जॉइंट में पेन हुआ, या किसी फिंगर में पेन हुआ। तो होता क्या है कि जब भी कभी ऐसे लोग पेन लेकर के आते हैं, तो वही हमसे ये कहते हैं कि हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, बस हम सुबह उठे और हमें पेन स्टार्ट हो गया, वो भी बहुत सीवियर पेन हो गया। तो इसके लिए मैं जनरली लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से ये पेन होना चाहिए था, लेकिन पेन हो गया है। तो मैं सब लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब भी कभी यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से पेन आएंगे, या ऐसे पेन आएंगे जिसमें कभी गाउट की ऐसी हिस्ट्री रही हो जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रही हो, या कोई भी ऐसा पेन है जो यूरिक एसिड के हायर साइड की वजह से या किसी भी कारण की वजह से हो रहा है, वो वन डे प्रोसेस नहीं है। तकरीबन कई कई साल लग जाते हैं इस पेन को डेवलप होने के लिए। हाँ, बस एक गंदी बात यह है कि जब भी होगा तो एकदम से बहुत एक्यूट होगा, और वो एक्यूट होने की वजह से पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि हमेशा कि जो मैंने मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मेरे को पेन हो गया। तो ये जो एक सबसे बड़ी गलत बात है पेशेंट की, कि वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर शिल्पी, मेरी एक बार और हेल्प करेंगे, वो जो व्हाइट बोर्ड कैसे ओपन होना है? अच्छा, आप उसमें जाइए ऊपर, ऊपर आपको दिख रहे होंगे नहीं, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, ऑल व्हाइट बोर्ड। शेयर स्क्रीन पे जाइए नीचे। जी, हाँ, बस यही है। यही है ना? हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, देखिए हम लोग बात कर रहे थे गाउट की। और ये जो गाउट है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा बोन का प्लेन लेकर के आया जिसमें से आपको लगा कि ये जो बोन है ये इन्फ्लेम्ड हो गई, और यूरिक एसिड इसके ऊपर डिपोजिशन हो गया, ये यूरिक एसिड की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो आप जनरली कभी भी ये मत सोचिए कि ये जो पेन है ये वन डे प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होगा, इसको डेवलप होने में ईयर्स लगते हैं। अगर आप यूरिक एसिड या गाउट के बारे में हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज आपने एक कटोरी दाल खाई और कल को आपको पेन हो गया। ऐसे जनरली नहीं होता। ये जब भी होता है जब क्रोनिक केसेस में हो जाए। मतलब
पहली बार पेशेंट को एक कटोरी दाल या कुछ भी प्रोटीन खाने से कभी भी दर्द नहीं होगा। वो जब भी होगा जब वो क्रोनिक केस में होगा, मतलब जैसे एक गाउट का पेशेंट चला रहा है और वो हमारे पास आता है कि वो कहता है कि सर मेरे को 6 साल से गाउट की प्रॉब्लम है। आज वो एक कटोरी दाल खाएगा तो उसको कल डेफिनेटली पेन होगा। लेकिन पहली बार जब भी पेन लेकर के आएगा तो वो कभी भी एक कटोरी दाल या किसी भी छोटी सी प्रोटीन का एक हिस्सा नहीं होगा। इसको डेवलप होने के लिए ईयर्स लगते हैं। और इसका सबसे मेजर फैक्टर है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब यूरिक एसिड ब्लड का इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं तो कहता है कि यूरिक एसिड तो पूरे ब्लड में घूम रहा है, इसका मतलब पूरी बॉडी में घूम रहा होगा, तो व्हाई आई एम सफरिंग विद ओनली वन जॉइंट। तो इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है, सिर्फ पैथोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। पैथोलॉजी ये कहती है कि जो भी सबसे हमारे वीकेस्ट पॉइंट होंगे वहीं पे पैथोलॉजी हमेशा ज्यादा डेवलप करेगी। मान लो अगर इस बोन में कभी भी पहले से कोई भी इंजरी हुई होगी या रिकरेंट इंजरी हो रही होगी, मतलब पेशेंट कभी कभी ये कहता है कि डॉक्टर साहब हाँ मेरे को कभी पेन तो फील हुआ था, या कभी मेरे को इस बोन में कभी फ्रैक्चर हुआ, या कभी इस बोन में मेरे को बहुत ज्यादा कभी कभी इंजरी हुई, या ऐसा लगा कि मुझे दर्द हुआ लेकिन उसके बाद मैंने शूज चेंज नहीं करे या मैंने स्लीपर चेंज नहीं करी, तो वहीं पे ही सबसे ज्यादा यूरिक एसिड के पेन आने के चांसेस होंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितने भी मैंने अभी तक हिस्ट्री दी है उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और पेन हो गया हो। तो पेन होने का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं किसी भी टाइप की कोई पैथोलॉजी है, जो आपको हो सकता है कि 5 साल पहले मिले, हो सकता है कि आपको 10 ईयर पहले मिले, हो सकता है 15 ईयर पहले मिले, लेकिन ये पैथोलॉजी जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो बोन का इरोजन हुआ। जैसे इसका एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूँ कि अगर मान लो आप किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे रास्ते होंगे जहाँ बहुत कमजोर होंगे सिक्योरिटी वाइज, या ऐसे रास्ते होंगे जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे रास्ते होंगे जहाँ कूड़ा पड़ा है, मतलब वीक पॉइंट्स हैं जहाँ रास्ते साफ नहीं होंगे, वहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, वहाँ पे आपको गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, वहीं पे आपको तकलीफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो कभी भी ये मत समझिए कि आपकी जो रोड है वो स्मूथ है, हो सकता है कि आप उस पर कोई गंदगी छोड़ते चले जा रहे हो और एक दिन वो यूरिक एसिड के पेन की वजह से आपको पेन उठा और आपने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं, मैंने अल्कोहल भी नहीं ली, मैंने बाकी सब काम भी नहीं किए, लेकिन मेरे को पेन हो गया। ये जितनी भी मैंने पैथोलॉजी बताई है इसमें एक ही सबसे मेन रीजन है, वो हमें ध्यान रखना है हमेशा, जेनेटिक हिस्ट्री का। एक बार और एक बात और साथियों, आपको लग रहा होगा कि हमने जितने भी आज तक आपने वेबिनार सुने हैं या जिस पे भी आप टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करते हैं, तो सभी लोग एक जो बुक्स है उसकी एक पावर पॉइंट बनाते हैं और हम थ्योरेटिकल बात करते हैं। हम मैं डॉक्टर शिल्पी ने आपके लिए ये प्लान किया है कि हम आज जो आपको बता रहे हैं वो एसेंस है, वो प्रैक्टिस का एसेंस है, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस में यूज कर पाओ, ना कि सिर्फ एक थ्योरी पढ़ते रहो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में और प्रैक्टिकल को समझने में दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरा और डॉक्टर शिल्पी का और ओआईएच का ये मोटिव है कि आपको प्रैक्टिस कैसे आसान बनानी है, आपको ये चीजें प्रैक्टिस में कैसे हेल्प करने करेंगी, इसके बारे में आपको जानना है। तो जनरली जब हमारे पास केसेस आते हैं तो मैं जो बता रहा था रिकरेंट पैथोलॉजी का, तो आपको हमेशा एक हिस्ट्री जरूर पूछनी है ऐसे केसेस में कि आपको रिकरेंट हिस्ट्री क्या रही, वो भी सबसे मेन है इंजरी की। अगर आपने इंजरी की हिस्ट्री लेते गए और आपको पता लग गया कि इंजरी की हिस्ट्री में बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ आती हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आर्निका है, फिर उसके बाद नेट्रम सल्फ है, फिर उसके बाद मैग्नीशिया फॉस भी है, और उसके अलावा हमारे पास वेलिस पर भी है, उसके बाद हमारे पास रूटा भी है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इसमें से आपको निकालनी पड़ेगी कौन सी मेडिसिन है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने एक दवाई खाई है मैग्नीशिया फॉस, तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि जो इमोशनल ट्रॉमा है मैग्नीशिया फॉस उसकी एक्चुअली सबसे बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मैग्नीशिया फॉस का एक सबसे अच्छा प्राइम सिम्टम है कि जब भी वो मैग्नीशिया फॉस का पेशेंट आएगा तो वो हमेशा आंसुओं के साथ आएगा, वो हमेशा रोता हुआ आएगा, उसकी आंखों से आंसू होंगे। और आपको वहाँ पे मैग्नीशिया फॉस हो सकता है कि 6x देने की जरूरत ना पड़े, वो 30 की एक दो दो के अंदर ही ठीक हो जाए। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कौन सी इंजरी कब लेकर के आया है। अभी हम आगे चल करके आपको इन इंजरीज के बारे में, इन मेडिसिन के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे और बताएंगे कि और गाउट किस टाइप से हो सकते हैं, उनकी क्या क्या स्टेजेस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शिल्पी आप प्लीज जो गाउट की स्टेजेस हैं या और भी कोई पैथोलॉजी जिसके बारे में हम अभी और भी बातें करेंगे बताएं, तो मुझे लगता है पहले सबसे पहले आप स्टेजेस के बारे में बता दें कि गाउट की क्या क्या स्टेज है। नहीं, बिफोर गोइंग टू स्टेजेस मैं इस चीज पे कुछ बताना चाहूंगी कि जी आपने जी बोला कि जैसे
हमें कहीं ना कहीं कोई हिस्ट्री लेनी चाहिए इंजरी की, जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं। जी एक्चुअली एक पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हमारे को मेनली बिग टो में क्यों मिलता है, ये बिग टो हर किसी का तो वीक पॉइंट नहीं होगा, जी बट हमें ये मिलता इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो वेन्स हैं वो हार्ट से नीचे जाती है और फिर अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाती है हार्ट की तरफ। सो ये जो टोज होते हैं, कहीं भी यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइज करने के लिए थोड़े से कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। और बाय द टाइम जो आपका ब्लड है जब वो फीट में चला जाता है, बाय द टाइम इट गोज टू द टो, उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू द अदर एरियाज काफी कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट सबसे ज्यादा ठंडा उसको जगह ये टोज और फिंगर्स मिलती हैं पैर की। इसीलिए यूरिक एसिड वहां जाते जाते क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट दैट इज द प्लेस जिसको हम वीकेस्ट पॉइंट कह सकते हैं, वहां पर वो सबसे ज्यादा क्रिस्टलाइज होके डिपॉजिट हो जाता है। दैट इज द रीजन के बिग टो में हमें सबसे ज्यादा पेन मिलता है। अब हम ये बिग टो में पेन को एक हम क्लासिकल सिम्टम मान करके चल सकते हैं, बट हमारे रिपर्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिम्टम बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज हर मैक्सिमम जो भी गाउट के केसेस होंगे उनमें ये हिस्ट्री मिलेगी कि बिग टो में, नोज में, बिग टो में, नीज में हमें कहीं ना कहीं पेन मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो हम कॉमन सिम्टम्स देखते हैं गाउट के, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अनकॉमन सिम्टम्स भी होते हैं। व्हाट आर दोज अनकॉमन सिम्टम्स, अगर हम उन पे देखें तो देखिए, कॉमन सिम्टम्स हो गया कि जैसे कॉमन सिम्टम्स हो गया पेन इन द बिग टो और इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, ये सारे हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें ऐसी हैं, क्योंकि जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो हमें स्टेजेस में विल फाइंड दैट देयर आर 4 बेसिक स्टेजेस। वैसे 3 स्टेजेस कहते हैं, बट एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक स्टेज। एसिम्टोमेटिक स्टेज में मैक्सिमम लोग रहते हैं जिसमें उनको या तो सिम्टम नहीं होते, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि वो कोई और प्रॉब्लम लेके आए, बट दैट इज डायरेक्टिंग अस टूवर्ड्स द यूरिक एसिड। तो हो सकता है कि यूरिक एसिड डिपोजिशन या गाउट के क्लासिकल सिम्टम्स हमें नहीं मिलेंगे, सो वी हैव टू सर्च फॉर दोज सिम्टम्स विच आर कॉल्ड एज अनकॉमन सिम्टम्स ऑफ द गाउट। जैसे कि मैक्सिमम टाइम गाउट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके पैर, देयर फीट इज यूजुअली कोल्ड, फीट इज कोल्ड। उनको फीट में किस तरीके का पेन होता है, जैसे पेन वो बताते हैं बिग टो में या नीज में, तो वो पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ पर्टिकुलर होता है? द कैरेक्टरिस्टिक उनको नॉर्मली बर्निंग पेन या टियरिंग पेन होता है। टियरिंग पेन इन द सेंस कि वो ऐसे बोलेंगे कि ऐसा लगता है कि मेरा कोई नर्व्स को बिल्कुल टियर कर रहा है, मसल्स को टियर कर रहा है, कुछ जैसे फाड़ने वाली स्टेज आती है। इसके अलावा जितना भी पेन होता है दैट्स ऑलवेज मैक्सिमम टाइम एग्रेवेटेड बाय कोल्ड। कोल्ड या ठंडी चीजों से या ठंडे वेदर में, या कभी भी कहीं आप एसी में बैठे हैं बहुत देर बिना सॉक्स के और आपके पैर ठंडे हो गए या आपका बॉडी पार्ट्स ठंडे हो गए, इन दैट केसेस द पेन एंड ऑल दीज सिम्टम्स विल फ्लेयर अप। ये सब चीजें के साथ हमें नॉर्मली 2 चीजें और पेशेंट से पूछनी होती है। कई बार जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो या तो बेड वेटिंग की हिस्ट्री बता देंगे आपको, या फिर वो आपको ईयर पेन की हिस्ट्री बताते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ईयर पेन, क्योंकि deposition of uric acid can even happen in the ear ossicles। हमारे ईयर में 3 बोन्स होती हैं, malleus, incus, stapes, बहुत छोटी बोन्स होती हैं, but the deposition of uric acid can happen in those areas। इसके अलावा बेड वेटिंग की भी एक हिस्ट्री बहुत कॉमनली कई केसेस में है। जब भी आपको कभी कुछ जरा सा शक होता है कि दिस पेशेंट कुड बी अ सिम्टम, कुड बी अ पेशेंट ऑफ गाउट, या उसका हाइपर यूरिसीमिया का केस हो सकता है, इन दोज केसेस
हमें बेड वेटिंग की हिस्ट्री और ईयर पेन की हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। तो उनसे हमेशा यूरिनेशन का पूछिए, तो कहीं ना कहीं वो ये शायद ये बताएंगे कि हाँ बहुत रेगुलर नहीं, पर हाँ कभी कभार बेड वेटिंग हो जाती है। बट ईयर पेन हमेशा, जब भी ठंड होती है या जब भी थोड़ा सा कोल्ड हुआ, उनको ईयर पेन हो जाता है। These two things many patients will give the history of. This also guides us towards कि हम उनका इन्वेस्टिगेशन कराएं कि टू फाइंड आउट कि क्या यूरिक एसिड हाई है। सो दीज आर फ्यू कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स। और अनकॉमन सिम्टम्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर हमें कॉमन सिम्टम्स नहीं मिलते तो हम अनकॉमन सिम्टम्स से उसका रूट कॉज जान सकते हैं कि व्हाट कंप्लेंट द पेशेंट इज कमिंग इज। वो हो सकता है गाउट की वजह से। पेशेंट आके नहीं बोल रहा कि मेरा यूरिक एसिड हाई है और मुझे गाउट हो रहा है, बट हमें पता लगाना है कि हमें डायग्नोस करना है कि वो एक्चुअल में केस है गाउट का। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स। सो ये चीजें हमें अपनी प्रैक्टिस में ध्यान रखनी चाहिए। जी डॉक्टर शिल्पी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक कहा आपने। और ये जो भी आपने विक्टो वाला जो बताया है ना सब कुछ, और जैसे आपने ईयर के बारे में बताया, तो मैं बात कर रहा था वही रिकरेंट इंजरी की। तो हाँ हमें जी। ये रिकरेंट इंजरी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हम्म। मीन्स कि अगर उसके ईयर में कोई दिक्कत है, तो ईयर में जो दिक्कत है वो ईयर की इन्फेक्शन के बिना नहीं होगा। मतलब कहीं करेक्ट। ना कहीं उसको रिकरेंट कोल्ड होगा, कहीं ना कहीं उसके ईयर में इन्फेक्शन पहुंची होगी, तभी उसकी बोन्स जो है वो वीक हुई होंगी। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंजरी का मतलब सिर्फ ये माने कि कहीं चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या सिर्फ कहीं से आप गिर गए तो इंजरी हो गई, ऐसा नहीं होता। इंजरी का मतलब होता है कि जहाँ पे एक बार की पैथोलॉजी को हम बार बार रिकरेंसी में देखें। मतलब अगर मेरे माथे पे अगर मैं ऐसे डेली ऐसे कर रहा हूँ, तो ये भी एक रिकरेंट इंजरी का एक टाइप है। हो सकता है कल को ये मुझे हेडेक दे जाए। तो हमें रिकरेंट इंजरी की हिस्ट्री गाउट के केसेस में खासकर हमें बहुत जरूरी लेनी चाहिए, वो चाहे मेंटल लेवल पर हो, वो चाहे फिजिकल लेवल पर हो। हमें इंजरीज की हिस्ट्री जरूर निकालनी है। तो ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताया क्रेटर टॉय का। तो बिग टॉय में हमेशा इसी वजह से होता है। ये थ्योरीज हैं, लेकिन थ्योरी के अबव जाना होम्योपैथी की हमेशा एक आदत है कि हमें होम्योपैथिकली उसको कहाँ तक लेकर के जाना है केस को, ये हमें आज जरूर सीखना है। सो थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। तो अब जैसे आपने बोला कि रिकरेंट इंजरी, तो उसमें जी हम ये कहेंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि रिस्क में होते हैं। विच आर जी द पीपल हु आर एट रिस्क फॉर द गाउट फ्लेयर। किनको गाउट फ्लेयर हो सकता है? तो जी एक तो आपने बताया कि जिसमें इंजरी की हिस्ट्री हो। एस जी कि इंजरी जरूरी नहीं है फिजिकल लेवल पे हो, इंजरी वो भी हो सकता है कि मेंटल लेवल पे हो। जी इसी के साथ साथ इंजरी हमें ये भी हो सकता है कि जो लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, जी कई कई पूरे पूरे दिन तक भूखे रहते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक भूखे रहते हैं और फिर कुछ खाते हैं, और जब वो खाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं। या बिल्कुल। फिर उन लोगों को आदत हो जाती है कि बहुत ज्यादा फास्ट करने की। हम्म, ऐसे केसेस में जहां हमें डाउट होता है कि यूरिक एसिड है, स्पेशली लेडीज में, या जो लोग बहुत ही रिलीजियस उसके होते हैं, हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए कि क्या वो बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं। या फिर ऐसे केसेस जो कि थोड़े ओबीज होते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। खाना खाना इन द सेंस कि उनकी भूख कभी मिटती ही नहीं है, अभी खाया 10 मिनट बाद लगेगा फिर कुछ खा ली। सेम वे जिनको पानी का इंटेक बहुत कम होता है, या फिर उनका अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा होता है। दीज आर द फ्यू केसेस या एरियाज जहां पर गाउट का जो रिस्क है वो देखा जाता है। जी इसीलिए अब गाउट को जनरली, जब गाउट की बात होती है तो अब गाउट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में लेकर के आते हैं। मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो ठीक है तो आपको जनरली गाउट नहीं होगा। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, या आपके अंदर कोई ऐसे क्रोमोसोमल डिस्टरबेंस नहीं है जिसकी वजह से आपको सिर्फ गाउट आना ही है, लेकिन आप गाउट को बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और अब बहुत जिनको अवेयरनेस है गाउट के बारे में, हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारा गाउट मिला है, लेकिन हमने उनको ऑलरेडी अब काउंसलिंग से, उनकी डाइट मैनेजमेंट से, उनको अभी तक भी 47 ईयर के एक मेरे पेशेंट हैं, उनको अभी तक भी गाउट का कोई सिम्टम नहीं आया है, जबकि उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रही है। तो अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट या बाकी सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो गाउट आने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गाउट कभी भी सिंगल डे में नहीं आता, इसको ईयर्स लग जाते हैं आने के लिए। ये कभी भी वन डे प्रोसेस नहीं है कि आपने आज गलत प्रोटीन खा लिया और कल को आपको दर्द होगा, ऐसा कभी भी फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा। वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है।
चाहे वो रिकरेंट इंजरीज की हो, चाहे उनके डाइटरी हैबिट की गड़बड़ी की वजह से हो, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो डॉक्टर शिल्पी, इनकी स्टेजेस के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। नॉर्मली जो गाउट होता है उसकी 3 स्टेजेस हम मानते हैं। अब एक 4th स्टेज भी जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जिसके बारे में मैं बताया, वो भी इंक्लूड हो गई है। बट अगर आप क्लासिकली देखें तो हम कहते हैं कि गाउट 3 फेजेस में आता है। फर्स्ट फेज है जिसको हम कहते हैं गाउट फ्लेयर। जैसे कि नाम बता रहा है गाउट फ्लेयर, कि नॉर्मली एक सिंगल जॉइंट, एक कहीं कभी कभार पेन होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये कंडीशन चलती रहती है, दैट इज व्हेन कि मल्टीपल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जब गाउट फ्लेयर होता है तब नॉर्मली बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हमें नहीं मिलेगा, बट धीरे गाउट फ्लेयर इंक्रीज होने लगता है और मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व होने लगते हैं, एंड थोड़ी सी जॉइंट्स में रेडनेस आने लगती है। दैट इज व्हेन फीवर भी आ सकता है। सेकेंड स्टेज जो होती है, दैट इज जब हमारे और भी धीरे धीरे जॉइंट्स इन्वॉल्व होने लगते हैं, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जो हमारे गाउट का फ्लेयर एक बार हुआ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज आपको पेन हुआ और वो पेन आपको हमेशा रहेगा। देर आर एपिसोड्स। कई बार ये होता है कि आज आकर के एक बार आपको आज अटैक हुआ पेन का, और फिर आपको अपने आप ही बिना किसी मेडिकेशन के भी हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल तक ना हो। तो जो सेकेंड स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरक्रिटिकल गाउट। सो जो 2 गाउट के बीच का टाइम होता है, एक गाउट अटैक, गाउट फ्लेयर हुआ, उसके साथ बाद में जो गाउट फ्लेयर होता है, उनके बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं इंटरक्रिटिकल पीरियड। जो आपका एपिसोड होता है गाउट फ्लेयर का, वो कभी कभी 6 महीने में भी हो सकता है, कभी 1 साल, कभी 2 साल, या कभी कभी होता भी नहीं है। सो कई बार जो है गाउट फ्लेयर एक बार होकर के बंद हो जाता है, कई बार इट गेट्स रिपीटेड। सिवियरिटी डिपेंड करती है, जब आपका ये इंटरक्रिटिकल पीरियड 2 साल 3 साल से घट के धीरे 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 करके वो बहुत शॉर्टन अप होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरक्रिटिकल गाउट। और इस स्टेज में आपको फीवर, इन्फ्लेमेशन और इवन मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पेन की इंटेंसिटी गाउट फ्लेयर से में हर गाउट फ्लेयर में बढ़ती रहती है। एंड द थर्ड स्टेज इज जिसको हम कहते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, दैट इज जब आपके जगह जगह पे यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है, उसको हम टोपेशियस गाउट कहते हैं। दैट मीन्स टोफाई बन जाती है, क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड जमा होकर के वो एक बड़ा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मास ऑफ यूरेट क्रिस्टल बन जाता है, जिसको हम टोफी कहते हैं। जब वो ऐसा हो जाता है तो आसपास की जो स्किन है, आसपास की जो बोन कार्टिलेजेस हैं, जो नर्व्स हैं, दे ऑल्सो गेट स्टार्टेड, वो कंप्रेस होने लगती है, एंड दैट इज व्हेन द पेन बिकम्स वेरी सीवियर। एंड जब ऐसा पेन होता है, दैट इज व्हेन यू विल गेट द मोर सेंसेशन ऑफ अ बर्निंग पेन, बिकॉज नर्व इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाता है। So tingling sensation, burning pain, all that will be seen whenever there is a topaceous gout stage. जी, देखिए, जब अभी बात हो रही थी कि इसके अदर सिम्टम्स की, तो आप सब लोगों को बता दूं कि जब भी हमारे पास गाउट का पेशेंट आएगा कोई भी, तो गाउट की जो प्राइमरी स्टेज है, कि मतलब हम लोग हिस्ट्री कैसे निकालेंगे, तो उसका जो प्राइमरी स्टेज है वो सबसे मेन है उसकी वीकनेस। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि यूरिक एसिड जो प्रॉब्लम है वो जनरली जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। तो देखिए डॉक्टर्स, ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड आपके सिर्फ जोड़ों को खराब कर रहा है, वो आपके साथ साथ उससे पहले आपके ब्रेन को भी खराब कर रहा है। इसके दो सबसे मेन सिम्टम है, वो है मेंटल वीकनेस, उसके बाद फिजिकल वीकनेस, और तीसरा है लिथार्जीनेस। फिर उसके बाद है स्लीप पैटर्न का डिस्टर्ब होना। यहाँ पे स्लीप पैटर्न के डिस्टर्ब होने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो इनिशियल फेज में हमेशा बहुत डीप स्लीप में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। इवन इनको जब कभी एक एसोसिएटेड पेन होता है किसी एक जॉइंट में, तब भी मैक्सिमम लोग आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी गहरी नींद आती है कि बस मेरा हाथ एक जगह पड़ा रह गया और मुझे पता भी नहीं लगा, और मुझे सुबह उठा तो मुझे पेन आ गया। तो वो जो अभी डॉक्टर शिल्पी ने अभी जो बात बताई कि ये जो डिपेंडेंट पार्ट पर यूरिक एसिड का जमा होना या ऐसे सॉल्ट्स का जमा होना जो बोन के स्ट्रक्चर को खराब करता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो जनरली जब हमारे पास यूरिक एसिड के पेशेंट आते हैं,
तो इस बात को बाकी किसी भी कन्वेंशनल मेडिसिन या किसी और मेडिसिन में कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि होम्योपैथी के लिए ये सिम्टम बहुत प्राइम है, और हमने अपनी जितनी भी स्टडीज हैं उसमें देखा है कि सबसे पहले हमें उनके मेंटल वीकनेस को या उसके बाद फिजिकल वीकनेस को, इन सब की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें एक सिम्टोमेटोलॉजी बनानी पड़ेगी, और उसी के हिसाब से मेडिसिन आएगी। सेम ऐसी हमारे केस में जो हमारे पास गाउट का केस ठीक हुआ, उसकी मेडिसिन थी चाइना। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन रही हमारे उस केस की। हालांकि हमने उसके एक्यूट्स को सबसे पहले किसी और चीज से मैनेज किया, लेकिन जब हमने प्रॉपर केस टेकिंग करी और हमने देखा कि उसकी जो एक्चुअल मेडिसिन थी वो चाइना थी, तो हम भी शौक रह गए कि यार चाइना कैसे गाउट में काम करेगी। लेकिन बहुत बढ़िया काम किया, हालांकि हायर पोटेंसी तक जाना पड़ा, हमने और भी अच्छे से काम किया, लेकिन सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन चाइना पे ही वो केस गाउट का बाकी सब चीजों के लिए भी ठीक हो गया। उनकी मेंटल वीकनेस भी चली गई, उनकी फिजिकल वीकनेस भी गई, उनका पेट भी ठीक रहा, उनकी एपेटाइट भी ठीक हुई, जैसा भी डॉक्टर शिल्पी ने जिक्र किया कि उनके एपेटाइट में भी डिस्टरबेंस होता है। सेम स्लीप पैटर्न में भी डिस्टरबेंस होता है, और उसमें भी डीप स्लीप। तो ये बात जरूरी है, क्योंकि अब ये डॉक्टर साहब ने एक बेड वेटिंग का भी जिक्र किया। तो जो बेड वेटिंग आती है वो भी जनरली उन्हीं पेशेंट को आती है जहाँ डीप स्लीप जनरली होती है। तो यहाँ पे यूरिक एसिड का कंसर्न हम लोगों को सिर्फ बोन तक नहीं ले के जाना चाहिए, हमें बाकी सब चीजों पे भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ उस बोन को ठीक करते रहोगे या सिंगल मेडिसिन आप कोई ऐसी दवाई देते रहोगे जिससे बोन का पेन ठीक हो जाए, तो आप गाउट के पेशेंट को परमानेंटली ठीक नहीं कर पाओगे। जी बख्शी। हाँ जी। और जब मेडिसिन की बात हो रही है तो मैं बताऊं आपको कि नॉर्मली जब भी गाउट के सिम्टम्स होते हैं तो बहुत रेयर केस में इचिंग या मतलब ऐसा स्किन रिलेटेड इश्यूज मिलते हैं। तो हमारी मैटीरिया मेडिका में काफी ऐसे ही अननोन अनकॉमन सिम्टम्स के लिए मेडिसिन है। तो स्पेशली अगर कभी गाउट का केस हो और बोन का इन्फ्लेमेशन हो, फीवर हो, एंड हमें सारे क्लासिकल सिम्टम्स मिल रहे हो एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट गाउट, तो एक सिम्टम अगर हमें बोन्स के पास इचिंग भी मिले, सो इसकी सिर्फ दो मेडिसिन है हमारे मैटीरिया मेडिका में गाउट रिलेटेड विद इचिंग ऑफ द जॉइंट। वो है बोविस्टा और ग्रेफाइटिस। ये दो मेडिसिन बहुत ही कॉमनली आती हैं जब इचिंग एसोसिएटेड हो जाती है फॉर द बोन इन्फ्लेमेशन। और अगर साथ में नंबनेस भी हो तो इट कैन बी प्लेटिना। सो ये तीन थोड़ी सी अनकॉमन मेडिसिन हैं जो कि हम गाउट में नॉर्मली नहीं सोचते हैं, पर अगर इचिंग है तो वी कैन थिंक अबाउट, अगर सिम्टम्स बाकी भी मैच करें तो बोविस्टा और ग्रेफाइटिस, एंड अगर नंबनेस एसोसिएटेड है बोन्स में, जॉइंट्स में, तो देन वी कैन थिंक ऑफ प्लेटिना एज वेल। गुड। देखिए, एक और मैं मेडिसिन डिस्कशन करना चाहता हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट है किसी भी टाइप के जॉइंट पेन के अंदर, एंड दैट इज बर्बेरिस वल्गेरिस। जितने भी लोग हैं ज्यादातर होम्योपैथ इस मेडिसिन को ज्यादातर रीनल स्टोन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था अपने इंटर्नशिप के दौरान, तब मैंने सोचा कि जो रेनल स्टोन है वो जो बन रहे हैं वो भी किसी डेब्रिज से बन रहे हैं। इसका मतलब जहाँ जिसको भी यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम आएंगी, उनको कहीं ना कहीं रीनल स्टोन की भी दिक्कतें आएंगी, उनको बाकी सब दिक्कतें भी आएंगी। तो बर्बेरिस वल्गेरिस इज अ वंडरफुल रेमेडी। आप इसके सिम्टम्स को पढ़िएगा, सारे वही सिम्टम्स हैं जो गाउट के होते हैं, सारे वही सिम्टम्स हैं जो बाकी सब डिजीज अर्थराइटिस के होते हैं। तो जब भी कभी आपको कुछ भी ना मिले, आपको लगता है कि यार मुझे बहुत जल्दी है और मैं केस चेकिंग नहीं कर पाता, मैं कोई सिम्टोमोलॉजी नहीं ले पाता, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर क्रॉनिक केस आया है तो वो सिर्फ बर्बेरिस वल्गेरिस के 3x पे चले जाएं और इसको रिपीटेडली दें, और तकरीबन 10 दिन के अंदर ही आप बहुत अच्छा से रिजल्ट देखेंगे। लेकिन अगर कोई एक्यूट में आता है तब भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस का 10 ml में यूज कर सकते हो, सिंगल डोज 24 घंटे के अंदर पेन किलर से ज्यादा अच्छा काम करती है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे डेब्रिस को, चाहे वो यूरिन से की एक्सक्रीशन हो, चाहे वो यूरिक एसिड की हो, चाहे बाकी जितने भी डेब्रिस हो जो यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं, जो हमारे ब्लड से जितने भी वेस्ट हैं, उसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इवन कभी भी आपको नी जॉइंट के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत लगे जो ओबिसिटी की वजह से आई है, वहां भी हमेशा, या किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आई है, वहां पे भी आप हमेशा 3x को यूज करिए। बहुत ट्रस्टेड मेडिसिन है। अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंटों को बताई है सब लोग आराम से फॉलो कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से काम करती है। डॉक्टर अमोल।
डॉक्टर अमोद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है। कोई बात नहीं। हम्म। ये तो अच्छा मैं लगा कि भी किसी ने हैंड यहाँ रेज पर किया। अपना एक केस बताना चाहूंगी। जी। अ, मेरे पास करीब 4-5 महीने पहले एक लेडी आई थी। शी वॉज अ नोन केस ऑफ गाउट। मेरे पास पहली बार आई थी, बट उन्होंने आके ये बोला कि मेरा हमेशा से यूरिक एसिड हाई रहता है और मैं 4-5 साल से एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ टू रिड्यूस द यूरिक एसिड। तो उनका जो मेन पर्पस था मेरे पास आने का, उन्होंने कहा मैं 4 साल से ले रही हूँ, बाकी जगह का पेन ठीक है, सब ठीक हो रहा है। उनका मेन प्रॉब्लम क्या था, उनके हाथ की जो फिंगर्स थी उनमें यहाँ पर ऐसे डिपोजिशन हो गया था कि उसको बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड हो गई थी, इस तरीके की हो गई थी उनकी फिंगर। और एक फिंगर ऐसी हुई थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी फिंगर्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनकी फिंगर्स में बहुत ज्यादा नोडोसिटी स्टार्ट हो गई थी। तो जब उनकी मैंने प्रॉपर हिस्ट्री ली, तो मेरे को जो मेडिसिन मेरे दिमाग में आई और मुझे लगा दैट वाज मेडोराइन, और मैंने उनको मेडोरिनम दी। और आज ही वो पेशेंट मेरे पास आई थी और उनका पेन चला गया था हैंड का। नोडोसिटी अभी नहीं गई थी पूरी तरीके से, बट पेन, स्टिफनेस, और वो कहती थी कि मैं अपना हाथ हिला ही नहीं सकती थी मॉर्निंग में। तो वो सारे प्रॉब्लम्स उनके खत्म हो गए थे। तो सिम्टोमेटिक उनको काफी रिलीफ हुआ था। अब बस ये नोडोसिटीज का जाना बाकी है। लेट अस सी इफ केस परसिस्ट और इफ मेडिसिन सूट्स, देन वी कैन थिंक ऑफ कि मे बी ये भी धीरे धीरे चला जाएगा। सो व्हाट डू तो यू हैव टू से अबाउट मेडोरिनम, डॉक्टर दीपक? जी, देखिए डॉक्टर शिल्पी, जब हम बात करते हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो हम्म। ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी मेडिसिन का सिस्टम है जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, बिकॉज हम लोग तो अब होमपैथ हो गए हैं और हम लोग मेडिसिन को पढ़ते रहते हैं, हम उनके इम्पैक्ट देखते हैं, हम उनको समझने लगे हैं। तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब हम इनिशियली फेज में, जब मैं भी होम्योपैथिक फील्ड में आया था, तो मुझे भी लग रहा था कि यार पता नहीं होम्योपैथी को कैसे मैच करेंगे और हम लोग कैसे कैसे सिम्टम्स को लेकर के आएंगे। तो आज की डेट में, अब जैसे मैंने अभी एक केस बताया कि चाइना से कौन सोचेगा कि गाउट ठीक हो जाएगा, तो ऐसी एवरी सिंगल रेमेडी हमेशा कहीं भी काम कर सकती है। और जहां तक जब कभी हम म्याज के टाइप पे बात करते हैं, हालांकि म्याज को आजकल बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर शब्दों में म्याज को समझाया था, लेकिन आज उसका एक अलग मतलब निकाल लिया गया है। और हर लोग ये समझने लगे हैं कि यार ये डिजीज है तो ये म्याज होगा, ये डिजीज है तो ये म्याज होगा। ऐसा नहीं है। सिम्टोमेटिक म्याज चलता है हमेशा। म्याज की अपनी एक अलग दुनिया है, बहुत छोटी सी दुनिया है, बस उसको बहुत बड़ा बना दिया है। तो ऐसी जब हम मियाज़मेटिक बात करते हैं, तो मेडोरिनम में बेस्ट एंटी साइकोटिक रेमेडीज आती हैं। जनरली मेडोरिनम की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एलन सर को पढ़ते हैं तो उन्होंने सिर्फ मेडोरिनम को 84 पेजेस में, लगभग 84 पेजेस में डिस्क्राइब किया है, जिसको हम बोइक में या बाकी सब छोटी किताबों में हम लोग सिर्फ 2 या 3 पेज के अंदर निपटा देते हैं। तो उन्होंने 84 पेजेस में मेडोरिनम को डिस्क्राइब किया है। अगर आप मेडोरिनम की हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, तो हमेशा उसमें जीआईटी का डिस्टरबेंस और ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज को जन्म देने के सिम्टम्स लिखे हैं जो गाउट जैसी बीमारी को अपने आप ठीक करेंगे। साइकोसिस है, ऑलरेडी साइकोसिस में होता है, गाउट भी एक साइकोटिक और सिफिलिटिक के बीच की स्टेज है। जब तक पेन नहीं हो रहा है, जब तक वो साइकोटिक है, जब दिन पेन होना शुरू हो गया बहुत सीवियर, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो सिवियरिटी में चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेडोरिनम जो है वो एक कमाल की मेडिसिन है। अगर हमने मेडोरिनम को 30 में बहुत बार रिपीट भी किया है, हमने 1 एम से भी ठीक किया है, हमने 10 एम से भी ठीक किया है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैं आपको छुपा करके नहीं बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ 1 एम दीजिए और बहुत ठीक हो गया। अगर मुझे लगता है कि हमें इनिशियली केस आया है और मेडोरिनम का केस है, तो हम उसको 30 में रिपीटिशन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिंगल डोजेस पे ही काम चलाने हैं। हमें दीवार कैसे तोड़नी है, कितनी चोट मार के तोड़नी है, ये हमें डिसाइड करना है। ये कि कोई और डिसाइड नहीं करता। तो जितनी भी पोटेंसीज का सिलेक्शन है वो आपको हम बता देंगे अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से, और आपको भी अपने एक्सपीरियंस के साथ में आता रहेगा। तो मेडोरिनम के सबसे जो मेन सिम्टम है जो आपको मिलेंगे, लाइन ऑन एब्डोमन, डिजायर फॉर ऑरेंजेस और बनाना, और उसके बाद डिजायर फॉर आइसक्रीम। ये 3-4 ऐसे सिम्टम है जहाँ पे आपको मेडोरिनम के अलावा जनरली कुछ और भी नहीं सोचना है।
अगर आपको इसके साथ पेन भी मिल जाए, इसके साथ हेयर फॉलिंग मिल जाए, इसके साथ स्वेलिंग मिल जाए, इसके साथ फाइब्रॉइड मिल जाए, इसके साथ कुछ और भी मिल जाए, अगर आपको ये सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको मेड्रिनम अपने आप ही कंफर्म हो जाती है। तो ये की नोट्स हैं। हमेशा हर एक मेडिसिन के की नोट हम लोगों को जरूर पढ़ने चाहिए, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके की नोट्स हमेशा अपने पास रखने चाहिए, अपने पास ध्यान रखना चाहिए। एक कमेंट आया हुआ है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल का। मोहम्मद मुजम्मिल लिखते हैं कि वो थैंक यू कर रहे हैं एक्चुअली मेरा, तो उन्होंने, मैंने एक स्किन के केसेस में मैंने उनको डेंड्रोन बताई थी हर्पीज के केस में, और उन्होंने किसी एक केस में ट्राई किया है तो उन्होंने बहुत बढ़िया से उसका रिजल्ट देखा है। सो थैंक यू मोहम्मद मुजम्मिल, अगर आपने ऐसा केस देखा और मेरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया। तो सेम इन्होंने जो लिखा है वो बर्बेरिस वल्गैरिस के रिगार्डिंग लिखा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको गाउट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे बर्बेरिस वल्गैरिस पे जाओ। ये आपको मेंटली कोई हर्ट नहीं करेगी, इसके रिपीटिशन से आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इवन अब हम कुछ जॉइंट के केसेस में जनरली बर्बेरिस वल्गैरिस को कॉमनली हम लोग सुबह शाम की डोजेज में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपके बाकी जितने भी बॉडी वेस्ट हैं, जो आपकी को बॉडी का पेन दे रहे हैं या बॉडी में लिखार्जीनेस लेकर के आ रहे हैं, ये उसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। ये सिर्फ स्टोन को निकालने के नहीं है, उसके डेब्रिस को निकालने के लिए है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जनरली मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेन आते हैं जो लेकर के आते हैं, स्पेसिफिक पेन्स हैं कि उन्होंने कहा कि किडनी का स्टोन का पेन हुआ, लेकिन वो एंटीरियर थाई में रेडिएट हो रहा है। पूरी रिपोर्ट उठा करके देख लो, सिंगल मेडिसिन बर्बेरिस वल्गैरिस, कुछ और सोचना ही नहीं है। कोई पैथोलॉजी भी नहीं है मिल रही है, तब भी अगर आपको एंटीरियर थाई का पेन मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहली मेडिसिन बर्बेरिस वल्गेरिस ही मिलेंगी। मैक्सिमम रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं हर एक केस में, कुछ जगह तो सिंगल भी पड़ी हुई है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस इज ए वंडरफुल रेमेडी। हमें मसल्स के पेन को ठीक करने के लिए हमें बाकी सब मेडिसिन पर भी ध्यान देना होता है, लेकिन अगर कुछ भी ना समझ में आए तो बर्बेरिस वल्गेरिस आप दे सकते हैं। अब बात आई इंजरीज की, हम लोग बात कर रहे थे इंजरी की कुछ मेडिसिन की। तो बख्शील आप फिर से हेल्प करनी पड़ेगी, कैसे क्लियर होगा या मैं दोबारा से शेयर करूँ इसको? बंद करके दोबारा से करिए शुरू। किसी का और कोई क्वेश्चन अभी तक हो तो प्लीज पूछते रहो। जी, जब हम लोग बात करते हैं इंजरी की और ज्यादातर गाउट की, तो मैंने आपको सबसे पहली मेडिसिन बताई अपनी तरफ से, वो थी बर्बेरिस वल्गेरिस। ये कंप्लीट हो, इसके बाद जो सबसे मेन मेडिसिन है वो है बेंजोइक एसिड। सब लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड में उसके यूरिन में बहुत स्मेल भी आती है। कुछ लोग हमें पढ़ने को मिलता है मैथमेटिका में कि घोड़े के जो अस्तबल है उसमें जैसी स्मेल आती है, गंदगी की तरह उसकी स्मेल आती है। लेकिन आजकल तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घोड़े के अस्तबल किसी ने देखे ही नहीं। तो किस कैसे पता लगाएंगे कि आप उसका जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा है? तो क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकली, हमें मैथमेटिका को प्रैक्टिकली भी सीखना पड़ेगा कि मैथमेटिका जो कह रही है उसका प्रैक्टिकल वे क्या है। तो जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आएंगे तो हमें उससे वेरीफाई करना है। तो उसके जो अटेंडेंट हैं, जनरली आपको पूछना है कि जब भी कभी वॉशरूम जाते हो तो ऐसा होता है कि अब बाद में जो गया उसको बहुत ज्यादा स्मेल आए। तो जनरली घर में हमेशा बोलती है, मुझे से कोई बच्चा आया है तो मदर बोलती है कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा स्मेल आती है, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसी स्मेल बेंजोइक एसिड की होती है। इसका मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आपको लगता है कि कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि घोड़े के यूरिन की जैसी स्मेल अब कौन सिम्टम देगा, क्योंकि किसी ने घोड़े के जैसी के यूरिन की स्मेल तो सूंघी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी घोड़ा भी नहीं देखा, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो आप उसको बोलो कि आप सुबह 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 सबसे पहला जो यूरिन है वो किसी एक पॉट में, किसी बोतल में इकट्ठा करो जो ट्रांसपेरेंट बोतल में हो, और उसको उठा करके शाम को रख दो, और कहीं भी किसी भी जहाँ पे ओपन एरिया हो, और उसको मतलब क्लोज करके और किसी धूप वगैरह में रख दो। जब आप देखोगे कि बेंजोइक एसिड की खास बात यह है कि उसमें डिपोजिशंस आ जाएंगे। नॉर्मली यूरिन को रखने के अंदर डिपोजिशन नहीं आने चाहिए 12 आवर तक, लेकिन अगर 6 to 8 आवर्स में ये डिपोजिशंस आ गए हैं तो भी आप सिंगल रेमेडी बेंजोइक एसिड पे जा सकते हो। ये क्लियर कट फॉर्मूला मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस में शुमार करता हूँ। मतलब जब भी मैं किसी पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन लिखता हूँ तो दो टाइप की इन्वेस्टिगेशन लिखता हूँ। एक तो वो इन्वेस्टिगेशन जो लैब से करानी है, और एक वो जो मैं बताऊंगा जो आपको घर पे करनी है।
ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हैं जो घर पे ही हो जाते हैं, जिनकी हमें पैथोलॉजी में जाने की जरूरत ही नहीं होती। बस उसके लिए हमें थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, उसके लिए हमें थोड़ी सी पैथोलॉजी पे ध्यान देना होता है। तो बेंजोइक एसिड का सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी ना लगे कि भाई स्मेल कैसी आ रही है, बहुत ज्यादा है, तो आप सिंपली उसको बोलो कि एक पॉट में यूरिन रखे, एक बोतल में ट्रांसपेरेंट हो, बस शाम को देख ले कि वहां पे कोई डिपॉजिट्स तो नहीं आ गए हैं। तो बेंजोइक एसिड इज ए सिंगल रेमेडी। आपको मेंटल नहीं मैच करना, आपको फिजिकल मैच नहीं करना, आपको कुछ और पेन के जो रीजन है वो मैच नहीं करना है। दूसरी बात, हमारे पास आती है एक बेलिस्पर। बेलिस्पर एक ऐसी मेडिसिन है जो हाँ हमेशा रिकरेंट इंजरीज का जिक्र होता है। और इसमें एक आपने इसका एक टर्म भी सुना है, जो एक रेड लाइन सिम्टम है इसका, वो है रेल रोड इंजरीज। इसके बारे में सुना किसी ने, बेलिस्पर के बारे में? रेल रोड इंजरीज के बारे में होता क्या है कि यहाँ पे इस बात का जिक्र है कि जैसे रेलवे लाइन आपने सबने देखी होगी, तो रेलवे लाइन के नीचे एक स्लीपर पड़ा होता है। ये जो स्लीपर है, आप सोचिए कि जब भी कभी इस स्लीपर को यहाँ से बेल स्लीपर को उठाया गया, ये जो टर्म है, होता क्या है कि इस एक रेलवे लाइन पर एक ट्रेन दिन में गुजरती है, और उस एक ट्रेन में हम एवरेजन मान करके चलते हैं कि 50 से लेकर के 80 तक पहिए हैं एक ट्रेन के अंदर। और अगर इसी ट्रैक से अगर दिन में तकरीबन 20 ट्रेन गुजरी, तो इतने पहिए उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। ये है एक्चुअल इंजरी। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ऐसे वर्कर्स जो हमेशा कुछ ना कुछ ढुलाई का काम करते हैं, जैसे कोई रिक्शा वाला हो गया, या कोई जैसे कंधे पे कट्टा रख करके चलता है, या ईंट ढोते हैं, ऐसी लेबर क्लास लोग जनरली बेलिस पर की मेडिसिन के अंदर बताते हैं। ये इसकी खास इंजरी है, मतलब ऐसी इंजरी जो बार बार रिकरेंट होती है। मतलब हम लोग रेल को तो देख रहे हैं, लेकिन उस रेलवे लाइन के नीचे पड़ा हुआ जो स्लीपर है, जो बार बार अपने आप को हर्ट करवा रहा है, उसको हम नहीं देख रहे बिना कुछ कहे। दैट इज बेलिस्पर। अगर हम ऐसी मेंटल हिस्ट्रीज पर जाएंगे, तो हमें लगेगा कि बार बार चोट खाई है, बार बार चोट खाई है। ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे बड़े भी आते हैं कि सर मेरा ये लेफ्ट वाला कंधा तो 6 बार टूट चुका है जिंदगी में। क्यों टूट चुका है? बार बार ही चोट लगती है, बार बार ही चोट लगती है। दैट इज कॉल्ड बेलिस्पर। ऐसी मेडिसिन सेम ऐसी कैटेगरी की दूसरी मेडिसिन है, वो है रोटा। लेकिन रोटा की खास बात यह है कि ये साइनोवियल जॉइंट को खत्म करती है। दूसरी बात यह है कि इसमें इतनी इंजरीज नहीं है मल्टीपल, जितनी बेलिस्पर में थी। रोटा का खास प्रॉब्लम, जो रोटा की प्रॉब्लम है, वो है साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड। जब भी कभी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो साइनोवियल जॉइंट तक हर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रोटा। जहां भी ऐसे होंगे जिसके बारे में सबको पता है कि नर्व इंजरी है, तो हाइपेरिकम। नर्व इंजरीज का मतलब, जब हम स्किन के कोर्सेज में बात कर रहे थे, मतलब ऐसी कोई इंजरी जिसने, जो वो 7 लेयर को क्रॉस करके सबसे नीचे तक की इंजरी की है, स्टेप वाली इंजरीज हैं, यहाँ हाइपेरिकम है। सबसे सबसे ऊपर की कर दी तब भी हाइपेरिकम है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, पूरी एपिडर्मिस इफेक्ट हो रही है। तो ऐसी मल्टीपल मेडिसिन हैं जो हमें निकालनी पड़ेंगी। सिर्फ जहां तक हम गाउट की बात कर रहे हैं, तो गाउट में मैं आपको ये नहीं पढ़ाना चाह रहा कि आपको मैंने एक मेडिसिन का सेट दे दिया 10-15 और सिर्फ इतना मेडिसिन निकालो। उस मेडिसिन को निकालने से पहले सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, वो है उसकी हिस्ट्री। अगर आपको उसकी हिस्ट्री जीआईटी से रिलेटेड लग रही है, तो जीआईटी से रिलेटेड मेडिसिन देखो। अगर आपको उसकी हिस्ट्री रेस्पिरेटरी से रिलेटेड लग रही है, तो आप उसके हिसाब से मेडिसिन देखो। ऐसी अलग अलग टाइप की हिस्ट्रीज लेकर के अलग अलग मेडिसिन आ जाती हैं। जो सबसे फेवरेट रेमेडीज है हमारे लिए गाउट की, वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो बर्बेरिस वल्गेरिस, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद हमारे लिए रस्टॉक्स जो सबकी फेवरेट है। उसके बाद ब्राइनिया भी आती हैं, उसके बाद मेडोरिनम जो हम एंटी मियास्मेटिक यूज करते हैं। फिर एक थूजा, एक ऐसी मेडिसिन है जब भी कभी ऐसे गाउट की प्रॉब्लम आएगी, जो आफ्टर वैक्सीनेशन है। अब बच्चों में भी गाउट आने लगा है। पहले जब हम लोग अपने बीएचएमएस के में पढ़ते थे, तब हमें ये सिखाया जाता था कि जनरली ये प्रॉब्लम 30 to 35 या उससे ऊपर ही आकर के शुरू होती है, उससे पहले जनरली यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अभी भी इस समय हमारे पास ऐसे बहुत सारे चाइल्ड आ रहे हैं जिनके यूरिक एसिड जो है वो हायर साइड पे है। चाहे वो उनकी डाइट को लेकर के हैं, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होने की वजह से। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं। तो थूजा वहाँ अच्छा काम करती है, जहाँ पे आफ्टर वैक्सीनेशन
चाहे वो 1 ईयर, मतलब हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि 1 साल से दर्द है, हम पता लगाते हैं कि अगर वैक्सीनेशन हुआ है। इवन अभी भी हमारे पास जॉइंट पेन के ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कोविड की वैक्सीनेशन के बाद आए हैं। तब भी वहाँ पे थूजा बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल आंख मीच करके दीजिए। आपको सिर्फ इतना पूछना है कि जब कोविड का वैक्सीनेशन लग रहा था तब उसके बाद से दर्द हुआ है, तो आप पूजा पे जा सकते हैं। बिल्कुल प्राइम रेमेडीज है। उसके बाद जो मैंने आपको रेमेडीज बताना चाह रहा था वो है सबसे प्राइम सल्फर। इसकी जो आज तक हिस्ट्री है वो है नाइट एग्रीवेशन की। जब भी कभी ऐसे पेन जो नाइट में होंगे, खासकर 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, सल्फर इज द टाइम रेमेडी। आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर शिल्पी। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर दीपक फॉर सच इंफॉर्मेटरी थिंग। हाँ जी, किसी और के कोई डाउट्स हैं? कोई और क्वेश्चंस किसी के को पूछने हैं? ओके, थोड़ा सा हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट बेसिकली होते हैं जो हमें पेशेंट्स में कराने चाहिए। तो मेन टेस्ट तो वही है कि हम उनका यूरिक एसिड लेवल ब्लड का टेस्ट करते हैं। अब अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएं तो यू विल सी कि पहले, आज से करीब 30 इयर्स पहले आप कह सकते हैं, यूरिक एसिड का जो लेवल था, अभी जैसे माना जाता है कि टिल 7 इट्स कंसिडर्ड एज नॉर्मल, बट पहले अगर आप थोड़े से और साल पहले जाएंगे तो यू विल सी कि द नॉर्मल लेवल वाज 5। धीरे धीरे 15 साल बाद उसको 6 किया गया और अब उसकी लेवल जो है 7 कर दी। तो वाई द लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड? आपके सिम्टम्स तो 5 पे भी आ जाने चाहिए, 6 पे भी आ जाने चाहिए, 7 पे भी आ जाने चाहिए, तो उसको हटा के 7 क्यों कर दिया गया? सो ये जो टेस्ट लेवल है एक्चुअली इज नॉट बेस्ड ऑन कि आपका यूरिक एसिड ब्लड में कितना होना चाहिए, इट इज लाइक अ एवरेज। तो पहले के केसेस कंपैरिजन में आजकल के कंपैरिजन में अगर करें, तो आजकल के कंपैरिजन में जो लोगों का यूरिक एसिड लेवल है उनके ब्लड सीरम में, दैट इज वेरी मच हाई, तो वो एक एवरेज लिया गया है। सो व्हाट यू सी इज, जो हम किसी भी, इट्स नॉट ओनली फॉर यूरिक एसिड, अगर आप कोई भी पैरामीटर देखें, उसकी अगर नॉर्मल रेंज को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है, सो दैट इज बिकॉज द एवरेज वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो वो एवरेज वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स उतनी रेंज में आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। बट दैट डजंट मीन कि कई बार ऐसा भी केसेस होते हैं कि आपका यूरिक एसिड 5 या 5.5 है या 6 है, बट स्टिल द पेशेंट इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ गाउट, और वो क्लासिकल सिम्टम्स लेके आता है। बट यूरिक एसिड आप टेस्ट कराएंगे तो यूरिक एसिड हाई नहीं है, तो क्या हम उसको गाउट की कैटेगरी में ट्रीट नहीं करेंगे? वी विल। सेम वे कई बार होता है कि उनका यूरिक एसिड बहुत हाई होता है, मे बी समवेयर अराउंड 8 ऑल्सो, बट वो कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करते। इन दोज केसेस हमें बाकी जो अनकॉमन सिम्टम्स जिसकी हमने पहले बात करी, दोज ऑल हैव टू बी डिस्कस्ड एंड फाउंड। So there's one question Dr. Bharat जी Chaurasia have asked, can you share your experience, because he has mentioned sir. So sir, please share your जी। experience with Urtica urine. So I think the question is for you, Dr. Deepak. हाँ डॉक्टर शिल्पी, आपने एक बहुत अच्छा अभी पॉइंट उठाया। मैं इनका जवाब दूंगा अभी क्वेश्चन का। लेकिन उससे Okay. पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सबसे पहले लिखने के लिए ये होता है कि यूरिक एसिड टेस्ट होता है। यूरिक Hmm. एसिड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा मैं बता दूं कि नंबर 1 तो 12 आवर की फास्टिंग रखनी है और सुबह 8 बजे से पहले पहले सैंपल ले लेना है, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी रीडिंग अगर थोड़ी बहुत हायर भी आती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसके साथ एसोसिएट इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, उसमें सबसे प्राइम चीज है आपका, आप अपना थायराइड चेक कराओ। और उसके बाद है सीरम विटामिन D3। ये इतना जरूरी हो गया है आजकल क्योंकि सीरम विटामिन D3 हम सभी मोस्टली लोगों के लिए कम आ रहे हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि जो बोन्स है वो वीक होती चली जाती हैं और वो वैसी रिकरेंट इंजरीज का शिकार होती चली जा रही हैं। अब कोई मुझे बताए, जितने भी डॉक्टर्स अभी सुन रहे हैं, कि विटामिन D3 का हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी उसका क्या हुआ, विटामिन D1 का, D2 का, या कुछ आगे भी होते होंगे, D4 का, किसी को मालूम है कि D3 जो है वो 3 क्यों आया, या सिर्फ एक ही D3 क्यों है, बाकी कहाँ गए? ये कितने टाइप के होते हैं विटामिन D? कोई भी इसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो अपने स्पीकर ऑन, मतलब माइक ऑन कर सकते हैं।
चलिए, मैं ये समझता हूँ कि जनरली नहीं पता होगा। तो जनरली विटामिन डी जो है वो 12 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे स्टेबल फॉर्म में जो होता है वो D3 होता है, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। अभी एक दूसरा टेस्ट आ रहा है, वो है विटामिन D6। एक्चुअल में अब जब देखा जाएगा तो यूरिक एसिड जैसी जितनी भी प्रॉब्लम है वो D6 की डेफिशिएंसी की वजह से होंगी। लेकिन हमारे पास D1 भी है, D2 भी है, D4 भी है, बाकी सब विटामिन भी हैं। इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शिल्पी अगली बार सब लोगों से क्लास में पूछेंगे कि ये क्या है, ये कहाँ है, इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा है आजकल। तो इसके बारे में मैं आपको जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी गाउट के लिए तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि D6 जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है D6 और B12। आप अपना फॉलिक एसिड भी टेस्ट करा करके देख सकते हो, अगर यहाँ भी ठीक नहीं है तो भी आप यूरिक एसिड का शिकार हो सकते हो। और बाकी LFT तो जरूरी है ही, ताकि आपका ये पता लग जाए कि आपने कितना उल्टा सीधा खाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें थोड़ी एसोसिएट करके चलनी चाहिए। एक्चुअली मेडिकल स्क्रीन यही कहती है कि आपको जो प्राइम सिम्टम लेकर के आ रहा है उसके अलग सोचना है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये जरूरी नहीं है अभी तो पेन लेकर के आ रहा है, वो तो ठीक है, ये तो पेन हो ही गया, लेकिन वो पेन आया कहाँ से? वो एक ही दिन में तो हर्ट नहीं हो गया, वो बोन एकदम से तो कोई चोट लगी नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो पेन आ रहा होगा। तो हमें वो एसोसिएट सिम्टम जो है वो जरूर देखने चाहिए। अब बात आते हैं डॉक्टर भारत चौरसिया के आर्टिका यूरेंस पे। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया मेडिसिन है। मैंने भी आर्टिका यूरेंस को बहुत यूज किया अपने इनिशियल प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कोर्सेज में बताया कि अब हमने मदर टीचर्स की डोजेस को कम कर दिया है, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन करे आर्टिका यूरेंस का जो पेन है वो बहुत सीवियर होता है, बहुत ही एक सिंगल जॉइंट पे होता है। ऐसे पेन होते हैं जो जनरली गाउट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। लेकिन इसकी खतरनाक बात बस ये है कि जिस दिन भी आप इसका रिपीटिशन रोक देंगे, मतलब आपने इसको 2 महीने दिया, 3 महीने दिया, 4 महीने दिया, जिस दिन भी आप इसका जो रिपीटिशन है जब वो रोकेंगे, और उसके बाद जो पेन आएगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आप देखोगे कि वो 2 टाइम्स होंगी। तो आर्टिका यूरेंस को आप यूज कर सकते हो एज ए सब्स्टिट्यूट, जब तक आपके पास कुछ नहीं हो उसके लिए। उसके अल्टरनेट में मैंने आपको एक ऑलरेडी मेडिसिन बता दी है, वो है बर्गेरिस वल्गेरिस 3x। बस आपको कहीं ओरिजिनली मिल जाए, नहीं मिले तो आप अपने मदर टीचर से इसको बना लेना, ज्यादा अच्छा है। कोई फेक पोटेंसीज मत लेना, तो इसको सर्च करना, अब नहीं तो अपने आप बनाओ, ज्यादा अच्छा है। तो उससे अच्छा ऑल्टरनेट मैंने आपको दे दिया, इससे क्या हुआ कि आपको जो मदर टिंचर से जो टॉक्सिसिटी आ रही है बॉडी में वो भी नहीं आएगी, और 3x फिर भी ज्यादा सेफ है, बर्बेरिस वल्गेरिस टॉक्सिन्स को निकालेगा। लेकिन अर्टिका यूरेंस और भी बहुत सारी चीजें गलत कर देता है। तो जब भी आप इसको मतलब हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा हो, आप भी इसको फॉलो करके देखना, अगर अर्टिका यूरेंस से आपका पेन ठीक हो रहा है किसी पेशेंट का, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के बाद जैसे ही आप रोकोगे तो जो नेक्स्ट पेन आएगा वो थोड़ा 2 टाइम्स ज्यादा आएगा, या फिर किसी और रूप में आएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं कभी भी ऐसे डोजेस पे नहीं जाता जो आगे चल कर कोई टॉक्सिसिटी दे। सो थैंक यू डॉक्टर भारत, ये मेरी तरफ से जवाब था। और किसी का कोई जवाब? अर्टिका यूरिन्स का मैंने एक तो केसेस में यूज किया था, जिसमें कि मेरे को मेनली जो सिम्टम मैंने यूज किया था अर्टिका यूरिन्स का, अपार्ट फ्रॉम कि उनको गाउट है और उनको इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में और सब, मैंने अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर में तो नहीं, बट हाँ 30 में जरूर यूज किया है अपनी प्रैक्टिस में। जो मेन सिम्टम जिसकी वजह से मैंने इसको यूज किया था दैट वाज कि उसको जो है हमेशा जरा सा भी कोल्ड वेदर हो या टच हो उसमें, और साथ में उनको कोल्ड वेदर की वजह से अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता। So that is one of the reason why I had chosen Urtica urines, and I got very good results. But I had used in 330 power and I got the results, not in mother tincture. गुड। डॉक्टर शिल्पी, इसके बाद आते हैं एक सबसे जरूरी सब्जेक्ट पे जो गाउट के लिए है, जिसको हम मिस करेंगे तो हमेशा गाउट का पेशेंट कभी परमानेंट ठीक नहीं होगा। वो है नेचर ऑफ पेन। आपने देखा होगा कि जो हमारी रिपर्टरी है ना, उसमें तकरीबन 36 टाइप्स के अलग अलग टाइप के पेन है। तो जब भी कभी आपको पेन का नेचर देखना है, स्पेशली इन द केस ऑफ अर्थराइटिस या गाउट, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तो आपको वो जो नेचर ऑफ पेन है ना, बस इस पे काम करना है। इस नेचर को समझना सीखो कि पेन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जिसके बारे में आपको और भी बता दूंगा। लेकिन जब भी कभी आप रिपर्टराइजेशन करेंगे तो आपका नेचर ऑफ पेन जो है जनरली यहीं पे सिंगल मेडिसिन मिल जाती है।
आजकल एक होम्योपैथी में बड़ा ट्रेंड चल गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत लंबी लंबी हिस्ट्री लेकर के और फिर मेंटल स्टेट को इतना ज्यादा हम एम्पावर कर लेते हैं कि हम केस को कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाओ कि आप उसके नेचर ऑफ पेन पे जाओ, उसको रिपर्टाइज करो, और आपकी मान लो कोई एक ऑक्जेलिक एसिड मेडिसिन आ गई। अब आप इस ऑक्जेलिक मेडिसिन के जब भी कभी मेंटल्स मैच करोगे तो एग्जैक्टली वही आएंगे जो उस पेशेंट के हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी कभी आपकी रिपोर्टराइजेशन में सिंगल मेडिसिन या ऐसी मेडिसिन जो बहुत प्राइम आ रही है, वो हमेशा वही मेंटल स्टेट लेकर के आएगी जो आपका पेशेंट ऑलरेडी लेकर के आएगा। तो कभी भी नेचर ऑफ पेन को मिस नहीं करना है। आईटी चिल्ड्रंस दे रहे हैं मदर टीचर में कोई बात नहीं, बल्बेस वगैरह 3x दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ में ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। इस स्टडी के बिना पेशेंट जो है वो बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। दर्द तो कम हो जाएगा लेकिन पेशेंट अच्छा नहीं होगा। तो दोनों चीजों में फर्क है। हमें पेशेंट को सिर्फ ठीक करना है या अच्छा करना है, दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। तो नेचर ऑफ पेन जो है वो बहुत जरूरी है, इसको जरूर याद रखना है। अभी किसी और के कोई क्वेश्चंस या डाउट्स? एक और बात डॉक्टर शिल्पी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं यूरिक है। एसिड एक सबसे मेन जगह पे आजकल आने लगा है, वो है स्किन डिजीज। तो बी अवेयर, अगर यूरिक एसिड और स्किन डिजीज आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा खतरनाक है, आपको यहाँ भी काम करना है। हो सकता है कि अभी तो पेन नहीं आया लेकिन इन फ्यूचर कहीं पेन आ जाए। तो जब भी कभी स्किन डिजीज आए तो उसमें भी एक इन्वेस्टिगेशन यूरिक एसिड की नोट कर लेनी चाहिए। ये भी एक बहुत कॉमन चीज है। और किसी का कोई क्वेश्चन? Uh, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर। Sir, can you tell the correlation between the uric acid and the skin diseases? हाँ डॉक्टर साहब, देखिए अगर पैथोलॉजी की बात करेंगे ना, तो यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन है वो स्किन की 5th लेयर में होता है। जब हम स्किन के बारे में पढ़ा रहे थे तो जनरली जो यूरिक एसिड के डिपोजिशन है वो सिर्फ बोन के अंदर नहीं हो रहे। देखिए जहां भी कहीं बोन है वहां पे कहीं ना कहीं तो स्किन का पार्ट है ना डॉक्टर साहब। तो जब भी कभी हम लोग स्किन में यूरिक एसिड के Yes. डिपोजिशन की बात करेंगे तो 5th लेयर जो स्किन की होती है वहां पे यूरिक एसिड के डिपोजिशन बहुत जल्दी होते हैं। और आप ऐसा हमेशा सोरियासिस के केसेस में बहुत देखेंगे। इसीलिए जनरली सोरियासिस की सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस, है ना। Okay. तो वो जो Yes. सोरियाटिक अर्थराइटिस आती है वो उसमें कहीं ना कहीं वो जो यूरिक एसिड है या एसिड डेब्रिस जो ऐसे सॉल्ट्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है मतलब स्किन के केस में भी, क्योंकि यूरिक एसिड अगर बोन में डिपॉजिट हो रहा है तो स्किन में भी हो सकता है ना। तो ये 5th Correct. लेयर में डिपॉजिट होता है। और बहुत कॉमन चीज है, ऐसी एक डिजीज है जिसको हम स्यूडो गाउट कहते हैं। डॉक्टर शिल्पी हम इसको भूल गए शायद, आप इसके हम्म, बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जी CPPD फुल Thank you. फॉर्म बताइए। मैं भूल गई इसकी फुल फॉर्म, बस मुझे CPPD याद है। इसको सीडो गाउट कहते हैं, विच गिव्स अ इंप्रेशन ऑफ गाउट बट एक्चुअली वो गाउट नहीं है। उसमें जो डेपोजिशन होता है दैट इज फॉर ऑफ फॉस्फो समथिंग, आई फॉरगॉट द कैलकेरिया एक्चुअल। कैलकेरिया पायरोफॉस्फेट। हाँ, करेक्ट। या सो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो आर क्वाइट लाइक गाउट, बट वो गाउट नहीं होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता, इट्स बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द अदर सॉल्ट दैट इज CPPD। सो उसको हम स्यूडो गाउट कहते हैं। बहुत बट वही अच्छी। है, जी हमें तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट जी। देखना है। सूडो गाउट की एक सबसे खास बात है कि ये क्रोमोसोमल लिंक डिजीज है। तो हम्म जब भी कभी ऐसे डिजीज में जाएंगे तो आपको हमेशा जेनेटिक्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सूडो गाउट बिल्कुल सिमिलर है, सारे पेन वगैरह भी सिमिलर है, लेकिन वहाँ पे हम्म जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो क्रोमोसोमल स्टडी अगर आप करा सकते हो तो बिल्कुल करा के देख सकते हो। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा लगा डॉक्टर पूर्वा, आपने कम से कम बोल करके क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन था। Thank you, sir. जी Sir, one more question. Whenever if I get a psoriasis case, so in जी that case, do I need to ask a patient to go and investigate the uric acid? जी डॉक्टर साहब, देखिए मैंने बताया कि नंबर एक तो जितनी भी हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आती हैं, जैसे मतलब सोरियासिस की एक बात करें तो सोरियासिस जैसी 10 to 12 ईयर ओल्ड होती चली जाएगी,
आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटी लाती चली जाएगी। इसकी एक सबसे बुरी बात यह है कि अगर इसने एक भी स्किन इरप्शन नहीं दिया, तब भी ईयरली सारे चेकअप कराइए। देखिए, जब डॉक्टर हैंडमैन सर थे तो उस समय हमारे पास इन्वेस्टिगेटरी टूल जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो जो अवेलेबल है आप उसको टेस्ट कराते चले जाओ, ताकि हमारे पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए और हम पेशेंट की लाइफ को जो है वो सेव कर सकें। तो सारी इन्वेस्टिगेशन किसी भी क्रोनिक डिजीज में ईयरली एक बार जरूर चेक होनी चाहिए। Okay, okay. Thank you, sir. थैंक यू। जी, किसी और का आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो काफी आई लोग नए हैं आज। अगर सेशन खत्म होने के बाद भी कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके अभी दिमाग में नहीं आ रही हैं बट आपको बाद में लगे कि यू शुड हैव आस्क्ड, प्लीज हमारे को ग्रुप में आप या इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज। और डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर अभी हैं तो वो हमें एक फीडबैक बस जरूर दें, ताकि हम आगे के लिए और भी अच्छा काम कर पाए। तो मैंने जो फॉर्म है वो जूम Dr. चैट Deepak, के one more question. अंदर भेज दिया है। जी जी। हाँ जी, मोहम्मद डॉक्टर मुजम्मिल जी मोहम्मद। बताइए। Yeah, because here in Saudi Arabia now evening time, so it's really hard to जी go to the market. Anyway, any acutes, जी। because I'm basically a physical medicine therapist also. I just want to know how to handle the acutes, higher potency like 1M, 10M or 50M, whatever is recommended in acutes. Because when the patient comes, they went to all the orthopedic subspecialties like in knee specialists, whatever is there. When they come to us, it's really challenging whether to start with 200 or 1M or 10M. What is the recommended dose to start immediately? So just to make sure that the patient is in good hand in homeopathy like that. ओके, गुड क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद। इसके लिए हम लोग सभी लोग परेशान रहते हैं, और होम्योपैथी हमेशा ये फेमस है कि वो क्रोनिक डिजीज के लिए अच्छा काम करती है, एक्यूट्स में अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी एक्यूट में काम किया ही नहीं एक्चुअली। तो जब भी कभी You are right. एक्यूट्स की बात आती है तो एक्यूट्स में हमेशा वो मेडिसिन यूज करो जो जनरली बहुत डीप एक्टिंग ना हो, रेयर रेमेडीज हो या उसके बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन हो। अगर आपको डीप एक्टिंग भी समझ में आ रही है तब भी आप हायर पोटेंसीज पे जाओ, 100% काम करेंगी। और कभी भी ये अपने मन के अंदर कभी मत घबराओ कि मुझे 1M से कुछ हो जाएगा, पेशेंट को 10M से कुछ हो जाएगा या 50M से कुछ हो जाएगा। कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आपकी मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है और वो काम करेगी तो वो 30 पोटेंसी में भी काम करेगी, 50 में भी काम करेगी। लेकिन उसको देने का तरीका और उसकी स्टेजेस पे हमें बस काम करना है। मतलब अगर मेरे पास आता है ऐसा कोई पेशेंट जिसको सल्फर का पेन हो रहा है, तो मैं उसको सल्फर 50M देता हूँ, उसको ठीक होता है। तो एक्यूट में हमेशा हायर पोटेंसीज को यूज करो, लेकिन बस सोच समझ करके। जो जैसे मैंने आपको जो एसेंस दिया, जैसे आपको मैंने रोडोडेंड्रॉन का एक एक्सपीरियंस दिया और आपको वो बिल्कुल अच्छा काम भी करा, It ऐसे ही आज मैंने works like बर्बेज। wonder. It works like wonder. I can share you the patient lives 1,000 kilometers from my city, Jeddah. Only single dose rhododendron 10M. The next day he sent me message that 90% itching gone. Can you imagine the miracles of homeopathy? हाँ, तो देखिए उससे काम हुआ ना, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे हैं। मैं Really, thank you very डॉक्टर much. शिल्पी या ओएस का कोई भी कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जो आपको सिर्फ एक किताबी कहानी पढ़ाएगा। हम आपको वो प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे जिससे पेशेंट ठीक होगा। इन केस जी, हमारे you are पास right. बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मतलब जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने एक बार 10M दे दी, अब उसको एंटीडोट कैसे करेंगे, उसको पेशेंट को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जबकि मैं कहता हूँ कि इन केस अगर आपको कोई होम्योपैथिक एग्रेवेशन आ भी गई है या पेशेंट किसी वजह से परेशान भी हो रहा है, तो हमारे पास एंटीडोट भी बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन जब तक हम उसको ट्रायल नहीं लेंगे, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं समझेंगे। आप डॉक्टर हैनीमैन सर को फॉलो करो, उनको देखो, उन्होंने बहुत बहुत हायर पोटेंसीज यूज करी थी। डॉक्टर क्लार्क को देखो, उन्होंने बहुत हायर और सबसे लोएस्ट भी यूज करी थी। डॉक्टर कैंट ने भी बहुत हायर पोटेंसीज यूज करी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिजल्ट निकाले वो 30 पे आए। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी, सिर्फ होम्योपैथी करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप रोडोडेंड्रॉन के साथ कोई पेन किलर मिक्स कर दो, ऐसा नहीं। आप रोडोडेंड्रॉन को चाहे 10M में यूज करो चाहे 50M में यूज करो, लेकिन करो रोडोडेंड्रॉन को पोटेंसीज में यूज। तो हमेशा कभी भी मत डरो किसी भी एक्यूट केस को आने से। जो भी आपको समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जो जो मैंने आज गाउट के बारे में हिंट दिया, आप सिर्फ इतना देना, पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा मेंटली ना फिजिकली, और पेशेंट ठीक भी होगा, ये कंफर्म है। एक और क्वेश्चन है, इज प्लांटर फेशियाइटिस रिलेटेड टू गाउट? तो उसका आंसर मैं देना चाहूंगी।
जी कि जी प्लांटर फिशाइटिस इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारा जो लिगामेंट टेंडन है वो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो जाता है। और बट ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही गाउट से अलग कर सकते हैं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि जिन केसेस में गाउट होता है उनमें प्लांटर फेशियाइटिस के जो होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे को जैसे कई बार कुछ पेशेंट्स आकर के ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो जैसे ही पैर नीचे रखा बेड पे तो बहुत सिवियर पेन होता है, पर जैसे जैसे चलना शुरू किया वो धीरे धीरे पेन चला जाता है, कुछ मिनट्स या कुछ घंटे के लिए ही रहता है। दैट इज वन ऑफ द क्लासिकल सिम्टम ऑफ प्लांटर फिशाइटिस। गाउट में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं है। जिनको गाउट है या जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उन केसेस में प्लांटर फिशाइटिस के केस जो होने के चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे। और एक जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया है जो आई प्रॉब्लम बोल रहा है, डॉक्टर स्वाति हैं कोई। डॉक्टर स्वाति कहाँ से हैं आप? डॉक्टर स्वाति, आप सुन पा रहे हैं? कोई बात सोलापुर। नहीं। सोलापुर से, अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछा है आई प्रॉब्लम की, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि हर पार्ट अपने आप से कनेक्टेड है। एंड पूरी पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सिर्फ होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल साइंस है, ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो आपके फिजिकल सिम्टम को आपकी मेंटल स्टेट से कनेक्ट करके चलता है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो हमारी आई जो है वो बेचारी कैसे बच जाएंगी? हमारी आई में भी कैटरेक्ट जल्दी आएगा, हमारी आई में भी विजन जल्दी लॉस होगा। मैंने आपको अभी जब सिम्टम पढ़ा रहा था तो आप देखो कि मेंटल वीकनेस और फिजिकल वीकनेस गाउट का सबसे प्राइमरी सिम्टम है। उस समय कोई भी नहीं सोच रहा होता है कि मुझे गाउट आएगा। तो हमें उस हिस्ट्री तक जाना है जहां तक पेशेंट ये नहीं सोच रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको मेंटल वीकनेस थी, उसको फिजिकल वीकनेस थी, वो बस बैठे बैठे खाए जा रहा है, बस खाए जा रहा है, बस खाए जा रहा है। जैसे डॉक्टर शिल्पी ने बताया कि उसे ये नहीं पता कि बर्गर कितना खाना है, उसे ये नहीं पता कोल्ड ड्रिंक कितनी पीनी है, बस वो खाए जा रहा है। और बाद में आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत थकावट थी, मुझे थोड़ा शरीर टूटा रहता था और एकदम से मुझे पेन कैसे आ गया। तो हर एक हिस्सा हमारी बॉडी का एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं चल सकता है। ये सिंपल सा जवाब है। और कोई क्वेश्चन किसी का भी? सर इस सिक्टापॉल और एक्टिया स्पाइकेटा के बारे में कुछ बताएं। हाँ, गुड यार। स्टिक्टा अपने आप में बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन स्टिक्टा में मैंने जो रेस्पॉन्स देखे वो 6 में जाकर के देखे, वो भी एक ही, मतलब मेरे को एक WSI कंपनी मिली। तो मैंने क्या करता था, पहले स्टिक्टा को 30 में यूज करता था, फिर मैंने 200 में भी यूज करा। वो दूसरी कंपनीज थी, लेकिन जब WSI का मैंने 6 वाला यूज करा तो उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए थे। लेकिन बस वही है कि वो टेम्परेरी रहते हैं, मतलब मैंने उसको कभी क्योरेटिव फेज में पेशेंट को जाते हुए नहीं देखा। और शायद मैंने 3-4 साल से उसको यूज भी नहीं करा है फिर, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। और दूसरी मेडिसिन कौन सी बोली थी? एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिएस पैकेटा को मैंने 200 में एक्यूट्स में यूज करा है बस। सर बारबेरिस को क्यू में दे सकते हैं क्या? सर देखो ना, मैंने कब मना किया। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं क्यू से 3x पे पहुंच गया। आपको तो वो दे रहा हूँ जो एसेंस है। क्यू में तो हम देते हैं ना, किडनी स्टोन में खूब देते हैं। नहीं किडनी स्टोन की बात नहीं सर, गाउट में देता हाँ हूँ, गाउट, बट क्यू हाँ में देता गाउट। हूँ। गाउट में जब मैंने उसको दिया तो देखो, मैंने जब भी कभी इसको समझाना होम्योपैथी को, तो मैंने ये देखा कि हमेशा हम अपने पेशेंट को ओवरडोजेस क्यों करें, जब हमारे पास 3x जैसी बहुत नॉर्मल सी पोटेंसीज हैं तो वो अच्छा काम कर रही है। हाँ ये जरूर है कि वो 6 में काम नहीं कर रही, वो 3x में अच्छा काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ज्यादा डाइल्यूट भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा प्योर भी नहीं रखना है। हमने बीच का एक हिस्सा निकाल लिया, 3x अच्छा काम कर रही है, तो हमें मदर टीचर की जरूरत ही नहीं। और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी, तो आप इतना मदर टीचर वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया तो आप 3x को यूज करो ना। जी। तो ये एसेंस है। मैं आपको कह सकता था कि मतलब बर्बेरिस फलगेरिस 30 यूज कर लो, मदर टिंचर यूज कर लो, लेकिन मैंने आपको वो चीजें दी हैं जो बहुत प्रैक्टिकली फिट है इनका। और ये मैं ही नहीं, जी। मेरी पूरी टीम, बाकी सब डॉक्टर्स, ये सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर दीपक शर्मा ने ऐसा किया। मैंने पहले डॉक्टर शिल्पी को 4 साल पहले बताया, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताया। आप जैसे आज आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे 10 साल बाद या 6 साल बाद पूछूंगा जरूर
कि वर्बेरिस का 3x का रिजल्ट कैसा रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर नुपुर, वो अपनी एमडी में जो उसने थीसिस का टॉपिक लिया है, उसने बर्बेरिस वल्गेरिस 3x पे जॉइंट पेन पे ही अपना थीसिस लिया, वो पूरी थीसिस तैयार कर रही है इसी चीज पे। तो ये और भी अच्छी बात आ जाएगी, आपको एक पूरा लिटरेचर मिलने वाला है 1 साल के अंदर। तो ये एसेंस सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, मेरे जितने भी टीम है जो हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं वो सभी का है। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैंने अभी लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो हमारी क्लासेस हैं, तो जो लोग नए हैं अगर वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ अपनी पोस्ट भेजते रहते हैं। मेरा भी जब कभी पढ़ाई का कुछ मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। तो जो लोग वो ज्वाइन करना चाहें, और प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी फीडबैक है वो जरूर दें। और जहाँ तक सर्टिफिकेट्स की बात है, तो सर्टिफिकेट आपको ईमेल पर आएंगे, उसके लिए शायद 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब भी आएंगे वो ईमेल पे ही आएंगे। हम व्हाट्सएप पे थोड़ा उसकी क्वालिटी डिरेंज हो जाती है, इसलिए हम लोग ईमेल ही प्रेफर कर रहे हैं। व्हाट्सएप के लिंक जो जूम के लिंक है वो भी हमने ईमेल पे भेजे हैं सर। ये डॉक्टर शिल्पी। हाँ जी डॉक्टर दीपक, आई थिंक वी शुड वाइंड अप। तो बाकी किसी के कोई भी वो हो तो आप अपना जब भी कुछ डाउट्स हो या कुछ क्लैरिफिकेशंस हो, feel free to ask any member of OIAH or Orbit Clinic. We are very happy to serve you. We are happy to report to your queries. I hope you all liked the session today. Please give your feedback so that we can improve ourselves in the next coming sessions. सो थैंक यू डॉक्टर शिल्पी, आपने इतने अच्छे से सब कुछ आज हमें बताया और इतना सब कुछ अच्छे से मैनेज किया। सो हाँ, ये जरूर है कि हमने कोई बहुत ज्यादा पावर पॉइंट्स हमने नहीं दिखाई हैं आप लोगों को, हमने बहुत ज्यादा आपको लिटरेचर्स नहीं दिखाए हैं, क्योंकि अगर सिर्फ गाउट की बात करने लगे तो हमें हो सकता है कि पूरे घंटों लग जाएं या कई दिन लग जाएं हमें सिर्फ गाउट गाउट पे पूरा करने में। तो इसलिए मैंने और डॉक्टर शिल्पी ने ये डिसाइड किया कि हम आपको वो चीजें देंगे जो एसेंस वाली हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर शिल्पी इतना अच्छा सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू। Thank you. मीटिंग एंड करेंगे। हाँ जी।